آج ویو 360 میں امریکہ میں غیر ملکی صحافیوں کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کن صحافتی چیلنجز کا سامنا رہا ہے؟ کیا سوشل میڈیا کرونا وائرس سے متعلق غلط معلومات پھیلنے کا سبب بن رہا ہے؟ بنگلہ دیش میں پولیس اہلکاروں کے لیے یوگا کا اہتمام، کیوں؟ جانتے ہیں آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 15 ملکوں کی فہرست میں ہوتا ہے جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے ہونے والی کل ہلاکتوں کی تعداد 4400 سے زیادہ ہو گئی ہے اور شفا یاب ہو جانے والے افراد کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں منگل کے روز ایک دن میں 47,000 کیسز سے یومیہ نئے کیسز کا ریکارڈ بنا، اور وائٹ ہاؤس کی کرونا ٹاسک فورس کے اہم رکن اور متعدی بیماریوں کی روک تھام کے محکمے کے سربراہ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وائرس پر قابو نہ پانے کی صورت میں ملک میں یومیہ کیسز کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ امریکہ سے بڑی تعداد میں کرونا کے کیسز سامنے آنے کے بعد یورپی یونین نے امریکی مسافروں پر اپنے رکن ممالک میں داخلے کی پابندی لگا دی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی زیادہ تر خبریں سوشل میڈیا سائٹس فیس بک اور یوٹیوب سے حاصل کرتے ہیں، ان کے کرونا وائرس کے وبا سے متعلق بے بنیاد خبروں اور غلط معلومات پر یقین رکھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق ممکن ہے کہ ایسے لوگ لاک ڈاؤن کے قوانین کی پابندی بھی زیادہ نہ کریں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حالیہ ہفتوں میں برطانیہ بھر میں 5G موبائل ٹیلی کام کے درجنوں پولز کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بہت سے حملے اس غلط عقیدے سے متاثر ہو کر کیے گئے ہیں کہ 5G ٹیکنالوجی کرونا وائرس کی وبا سے منسلک ہے۔ کنگز کالج لندن اور پولنگ کمپنی ایسپوس موری کی ریسرچ سے اس طرح کے سازشی نظریات پر یقین اور خبروں کے لیے نشریاتی یا پرنٹ میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا پر انحصار کے بیچ مضبوط تعلق دیکھا گیا ہے۔ ایسے افراد میں سے جو یقین رکھتے ہیں کہ کرونا وائرس بالکل ہی نہیں ہے، تقریباً 56% لوگوں نے فیس بک کو اپنی خبروں کا بنیادی ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان میں کرونا وائرس کی علامات تھیں باہر گئے یا کام پر گئے، وہ اپنی معلومات سوشل میڈیا سے حاصل کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ برطانوی قانون ساز ڈیمین کالنز کا کہنا ہے کہ اس سے صحت عامہ کو ایسا خطرہ ہو سکتا ہے جس سے نمٹنا ضروری ہے۔ انہیں اس بارے میں بھی فکر ہے کہ سوشل میڈیا ویکسین کے پروگرام میں کیا کردار ادا کرے گا۔ اگر ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں ویکسین بن جاتی ہے اور ویکسین کے موثر ٹھہرنے کے لیے ہمیں لوگوں کی اکثریت کو اس کے استعمال کے لیے آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ضروری ہوگا کہ لوگوں کو اس پر اعتماد ہو۔ اور اگر لوگ سازشی نظریات اور جھوٹ پھیلاتے رہے اور دوسروں کو اسے نہ لینے پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے تو پھر یہ صحت عامہ کے لیے ایک سنگین خطرہ ہو سکتا ہے۔ فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کووڈ-19 کے بارے میں غلط معلومات سے متعلق لاکھوں ویڈیوز اور پوسٹ ہٹائی ہیں جن سے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کمپنیاں متعدد محاذوں پر رد عمل کا سامنا کر رہی ہیں۔ اسٹار بکس اور کوکا کولا سمیت 150 سے زیادہ کمپنیوں نے غلط اطلاعات اور نفرت انگیز تقاریر کے خدشات پر فیس بک پر اشتہار خریدنا بند کر دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ امریکی صدر صارفین کے مواد کے لیے سوشل میڈیا کمپنیوں کو حاصل قانونی استثنا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں ٹویٹر نے صدر ٹرمپ کے ایک ٹویٹ پر فیکٹ چیک کا نوٹس لگایا تھا۔ اگر ٹویٹر معزز نہ ہوتا اور آپ اس طرح کے بندے کو جج اور جیوری بننے دیں تو جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے لگتا ہے آپ اسے بند کر دیں، لیکن مجھے ایسا کرنے کے لیے قانونی عمل سے گزرنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کا کہنا ہے کہ غلط معلومات سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس مضبوط نظام موجود ہے، لیکن ڈینیل آلنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی واضح نہیں۔ ان کے نظام کو آڈٹ کرنے کے لیے کھولنا اور انہیں جمہوری اداروں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ ثبوت کہ سوشل میڈیا کرونا وائرس کی وبا سے متعلق جھوٹی معلومات کو تیزی سے پھیلنے میں مدد دے رہا ہے۔ ممکنہ طور پر سوشل میڈیا کمپنیوں پر ایسی معلومات کو سختی سے روکنے کے لیے دباؤ بڑھے گا۔ ہنری رجوال کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے والے کچھ ماہرین نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہ ممالک جہاں حال ہی میں خسرہ پھیلنے کے واقعات ہوئے، وہاں کرونا وائرس سے اموات اور اس سے ہونے والی سنگین بیماریوں میں کمی رہی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا خسرہ کی میمپس اور روبیلا ویکسین کرونا وائرس کے بدترین نتائج سے بچاؤ کا ذریعہ ہے؟ پچھلے سال جب بحر الکاہل میں واقع جزیروں پر مشتمل ملک
समोआ में खसरा फैला तो हेल्थ वर्कर्स खसरा, मम्प्स और रुबेला वैक्सीन लेकर घर घर गए। उन्होंने 90% आबादी, नौजवान और बूढ़ों को MMR वैक्सीन दी। इसके बाद कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, लेकिन अजीब बात यह थी कि समोआ जजीरे बड़ी हद तक इससे बचे रहे। मेडागास्कर, हांगकांग और जनूबी कोरिया में भी हाल ही में खसरा फैला। यहाँ भरपूर वैक्सीनेशन कैंपेन्स चली और नए कोरोना वायरस से होने वाले कोविड-19 की शरह कम रही। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के जेफ गोल्ड ने इन आदात का तज्जिया किया। MMR खसरा, मम्प्स, रुबेला वैक्सीनेशन और कोविड-19 के खिलाफ बेहतर मदाफत रखने वाली आबादियों के दरमियान वाज़ेह बाहमी ताल्लुक मौजूद है। जेफ गोल्ड ने खसरा के लिए कम वैक्सीनेशन की शरह रखने वाले ममालिक का मुताला किया और नतीजा इसके बरअक्स पाया। 2002 में 80% से भी कम शरह के साथ इटली में MMR की वैक्सीनेशन की सतह दुनिया में सबसे कम थी। फिर बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका का नंबर है और सबसे नीचे जर्मनी था। जेफ गोल्ड के आदात के मुताबिक जहां MMR वैक्सीन बालिग लोगों को दी गई, उन्हें दूसरे ममालिक में अपने जैसे लोगों के मुकाबले में कोरोना वायरस से कहीं कम खतरा रहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होने वाले एक मुताले से मालूम हुआ है कि ये MMR वैक्सीन का रुबेला वाला हिस्सा है जो क़ुव्वत मदाफ़ियत देता है। कई ममालिक के साइंसदान इस नज़रिए पर तहक़ीक़ कर रहे हैं। तुर्की के एक कैंप में शामी पनाह गुज़ीनों के बच्चों के मुताले से ये बात सामने आई कि तुर्क शहरियों के मुकाबले में उनका कोविड-19 से हस्पताल में दाखिल होने का इम्कान 6 गुना कम है। तुर्क रिसर्चर डॉक्टर रमज़ान ओकिए कहते हैं कि मुताला वसी करने की ज़रूरत है। उन लोगों पर तहकीक की ज़रूरत है जिन्हें MMR दी गई। बच्चों के अलावा जैसे तारकीन वतन, फौजियों, मुसाफिरों और फिर उनका मवाजना ऐसे ही बालिग ग्रुप से किया जाए जिसे MMR ना दी गई हो। अमेरिका में मुतादी बीमारियों के माहिर डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने और बीमारी से खुद को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना चाहिए, खास तौर पर आलमी वबा के दौरान। ये नजरिया है कि अगर आप किसी को मसलन खसरे से बचाव के लिए ताकतवर वैक्सीन देंगे तो वो कोरोना वायरस से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। ये एक नजरिया है जो हतमी तौर पर साबित नहीं हुआ है। तहकीक दानों को उम्मीद है कि उनका मुताला इसको साबित कर सकेगा। अगर ये सच है तो खसरा की मम्प्स और रुबेला वैक्सीन को बगैर किसी ट्रायल्स के पूरी दुनिया में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये महफूज होने के साथ आसानी से दस्तयाब है। उम्मीद की जा रही है कि जब तक कोविड-19 के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं बनती तब तक ये हमें महफूज रख सकेगा। कैरल पियर्सन के साथ सवशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार के 4 सालों में अक्सर मेन स्ट्रीम अमरीकी मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, और ऐसे में जब अमरीका में एक बार फिर इलेक्शन का साल है और कोविड-19 जैसी वबा का भी सामना है, तो मीडिया और सदर ट्रंप के दरमियान ये सर्द जंग मज़ीद तेज़ होती जा रही है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के फ़ॉरेन प्रेस सेंटर के मुताबिक इस वक्त अमरीका में 118 मुल्कों के 962 मीडिया नुमाइंदे काम कर रहे हैं। इन गैर मुल्की सहाफ़ियों का सदर ट्रंप के दौर में काम करने और ट्रंप वाइट हाउस की कवरेज का तजर्बा कैसा रहा, जानते हैं नुखबत मलिक से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की ये पुलिस न्यूयॉर्क। दुनिया में अमेरिका के असर और रसूख का एक असर ये भी है कि दुनिया वाशिंगटन DC में रूनुमा होने वाली सियासी, सिफारती और दूसरी सरगर्मियों को जानने में गहरी दिलचस्पी रखती है। नतीजा ये कि दुनिया के अक्सर छोटे बड़े सहाफती इदारों की मौजूदगी यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ चंद घंटों में खबर बदल जाती है। सुबह की सबसे बड़ी खबर दोपहर तक तब्दील हो जाती है। जहाँ सदर ट्रंप और ज्यादातर लिबरल नजरियात के हामी मेन स्ट्रीम मीडिया की एक दूसरे के लिए नापसंदीदगी कई बार खुद अमरीकी सहाफियों के काम के लिए चैलेंज बनी है, वहीं गैर मुल्की सहाफियों को भी पिछले 3.5 साल से एक नई फिजा का सामना है। Hello everyone. व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप अमरीकी तारीख के सबसे काबिल रसाई सदर हैं,
लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले गैर मुल्की सहाफ़ी कहते हैं कि उनका तजुर्बा मुख्तलिफ है। एक्सेस नहीं देते, वो एक्सेस नहीं देते, बहुत कम दिया उन्होंने फॉरेन मीडिया को एक्सेस। उनका ज़्यादातर फोकस क्या अपने मीडिया को भी नहीं देते, वो सिर्फ जिनको वो समझते हैं कि उनका हामी मीडिया जो है फॉक्स न्यूज़ जैसे हो गया तो और कुछ और हैं जो यहाँ छोटे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन प्रो ट्रम्प हैं, उनको देते हैं एक्सेस। आपने देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट को नहीं देते वो। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान रिपोर्टर्स से बर्ताव हो, मालूमात तक रसाई हो या फिर मीडिया के बारे में आम तौर पर दिए जाने वाले बयानात। ये गैर मुल्की सहाफ़ी माजी के अमरीकी सुदूर और सदर ट्रंप के बीच भी वाज़ेह फ़र्क देखते हैं। ओबामा इंतजामिया के दौरान ये था, आप सवाल पूछ सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिस तरह से होते हैं सब कुछ जो एक नॉर्मल तरीके से होता था। यहाँ पर एक सब कुछ बहुत ही जिसको डिसरप्टिव तरीके से ट्रंप की जो पूरी प्लेबुक की रही है कि कैसे अमेरिका को चलाना है वो बिल्कुल अलग है। ओबामा या इवन रिपब्लिकन जो सदर थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनसे भी अलग ये रहा है। फेक न्यूज़। सदर ट्रंप के मकामी मीडिया के लिए जज्बात और उनके बयानात इन गैर मुल्की सहाफ़ियों को कैसे मुतासिर करते हैं? You're a fake wolf blitzer. ये सब हथकंडे हैं, लेकिन जब मीडिया को निशाना बनाया जाए तो ये मददगार नहीं होता। सुदूर मुताहिद किया करते हैं, मगर ये वो सदर हैं जिन्हें तकसीम में कामयाबी दिखती है। अमेरिका में इस वक्त मकामी सहाफ़ियों के साथ इन गैर मुल्की सहाफ़ियों के सामने भी दो बड़े मरहले हैं। एक तो कोविड-19 की वजह से मुल्क में जारी सूरत हाल और ऐसे हालात में इसी साल होने वाले अमरीकी इंतखाबात की कवरेज, जिसमें सदर ट्रंप जैसे एक गैर रिवायती उम्मीदवार दोबारा इंतखाब की कोशिश कर रहे हैं। सहाफ़ी कहते हैं कि अमेरिका में ये एक मुश्किल और अहम तरीन वक्त है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अमेरिका में हालिया मुजाहिरों के दौरान बहुत से नौजवान मुआशरे में समाजी इंसाफ के लिए सड़कों पर निकल आए, लेकिन बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो इन मसाइल से मुताल्लिक बात कर और अपने जैसे नौजवानों को इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। Go reserve tickets now and leave him standing there alone on the stage. What do you say? इसे टिकटॉक का नया रुझान कह सकते हैं। मुमकिन है ट्रंप की हालिया रैली के लिए सोशल नेटवर्क वो किरदार अदा न कर सके जिसकी तवक्को की जा रही थी। निस्फ दर्जन नौजवानों ने पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ नेशविल में एक मार्च का इनेकाद किया, जिसमें लगभग 10,000 अफराद शामिल थे और ये सब इंस्टाग्राम के जरिए हुआ। आजकल के नौजवान सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। I think overall technology. मुझे लगता है कि मजमूई तौर पर टेक्नोलॉजी वाकई हमारे लिए एक मुहर्रिक है। ऐसी चीज़ें जो पहले ही हमें एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, उनके बारे में ये जानना कि हम उन्हें कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ न्यूयॉर्क शहर में जेसिका और उनके साथी अपनी बरादरी के वोटों का ऑनलाइन इंदराज करने में मसरूफ हैं। हम हकीकतन डिजिटल जमहूरियत के लिए जगह बनाना चाहते हैं। इनके लिए वसाइल का मुश्तरका इस्तेमाल और दीगर हम ख्याल तंजीमों के साथ ऑनलाइन इत्तेहाद कायम करना कलीदी हैसियत रखता है। There's nothing better than coming together in a group. एक साथ ग्रुप की सूरत में काम करने और मुमकिना इक़दामात पर बात करने से बेहतर और कुछ नहीं। और फिर इसके बाद हम सब अपनी अपनी बरादरी में उन चीज़ों को मुतारिफ करा सकते हैं। डिजिटल एक्टिविज्म कोई नई बात नहीं है, लेकिन आजकल के नौजवान इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जेसिका ने डिजिटल टूल किट्स बनाने में मदद की, जिन्हें सेनेट में कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं और हमने इसे इस तरह बनाया है कि ये पहले से लिखे हुए ट्वीट की तरह खुद ब खुद इस तरह खुल जाता है और सिर्फ 1 सेकंड में आप इसे भेज सकते हैं। इसमें मुंतखब अहदेदारों को टैग करके ये बता सकते हैं कि आप किस कानून साजी का और क्यों मुतालबा कर रहे हैं। जेसिका समझती हैं कि इसी के नतीजे में न्यूयॉर्क के शहरी हकूक से मुतालिक कानून के एक हिस्से को हज़फ कर दिया गया है। बाज़ लोग पहले से मौजूद प्लेटफॉर्म्स को दोबारा काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं, जैसा कि ट्विच, जो कि गेमर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की एक साइट हुआ करती थी, अब इसे एहतजाज के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इबारत हर वक्त काम नहीं आती। अगर आपको बहुत कुछ कहना है और अगर आप कोई खबर बताते हुए लोगों के एहसासात भी जानना चाहते हैं, तो मुझे लिखे हुए पैगाम से ज़्यादा फ़ोन कॉल पसंद है। हर एक की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने वाले ये डिजिटल आलात ऑनलाइन और ऑफलाइन राब्तों से मुतालिक हैं। टीना ट्रेन के साथ सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। facebook.com/urduvoa और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa।
चलें, इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान वरना किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। रूस के आईन में तरमीम के लिए दूसरी बार कोशिशें की जा रही हैं और इस पूरे हफ्ते के दौरान वोटिंग जारी रहेगी। इससे पहले अप्रैल में हुकूमत को कोरोना वायरस के बायस ये वोटिंग मुलतवी करना पड़ी थी। मज़ीद तफसीलात देखते हैं हमारे शो के इस अगली रिपोर्ट में। रूस के आइन में तरमीम के लिए वोटिंग कुछ इस तरह तैयार की गई है कि हर एक का फ़ायदा हो। इलेक्शन के इश्तहारों में क़दामत पसंदों की हमायत हासिल करने के लिए हम जिन्स परस्तों के दरमियान शादियों पर पाबंदी की बात की गई है, जबकि पेशावर तबके की दिलचस्पी के लिए हेल्थ केयर और तालीम की सहूलतों का वादा है। हत्ता कि सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए भी इसमें कुछ है, और वो है सदारत की मुद्दत के बारे में तब्दीली, जिससे वो सन 2036 तक इक़्तिदार में रह सकेंगे। मगर कुछ लोग कहते हैं कि इस बात की कोई खास मशहूरी नहीं की गई। कभी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं। अवाम में पुतिन की मुद्दत बढ़ाने के बारे में इल्म बहुत कम है। सदर पुतिन कहते हैं कि आईनी तरमीम कामयाब होने से सियासी इस्तेहकाम यकीनी होगा। उनकी जगह किसी और को लाने के लिए रस्साकशी नहीं होगी तो मसाइल के हल पर तवज्जो दी जा सकेगी। ये हमारे मरकजी कानून यानी आइन के लिए है, जो हमारे मुल्क में जिंदगी गुजारने की कुंजी है। इससे हमारे कानून और अदल इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मगर कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सदर पुतिन के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए हुकूमत की ये तेज़ी वबा के बायस मुल्क के ख़राब होते मुआशी और सियासी हालात की अक्कास है, जिनसे सदर पुतिन के चांसेस मुतासिर हो सकते हैं। मुआशी सूरत हाल मजीद खराब हो रही है और आइंदा 3 माह में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। वायरस से पहले वाले हालात तक पहुँचने के लिए शायद 6 माह लगे, इसलिए पुतिन जल्दी में है। हुकूमत ने वोटिंग को 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया है और वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए इक़दामात उठाए हैं। पोलिंग स्टेशंस पर दस्ताने और मास्क पहनना ज़रूरी है। इन दिनों तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी तो नहीं दी जा सकती, मगर हिफाजती आलात के सबब वोटिंग ठीक चल रही है और हमें अपना फैसला सुनाना होगा। ताहम तिबी माहिरीन को तशवीश है कि इस वोटिंग के बायस इन्फेक्शंस में इजाफा हो सकता है, जिससे हस्पतालों पर बोझ बढ़ेगा। हमारी हुकूमत और हुकाम को आवाम की सेहत का कोई ख्याल नहीं, उन्हें बस अपने सियासी अज़ाइम का ख्याल होता है। रूस में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 6.5 लाख तक पहुँचने को है, जो अमरीका और ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद सदर पुतिन ने सोवियत यूनियन की नाजी जर्मनी पर फतह के 75 साल पूरे होने पर गुज़श्ता हफ्ते रेड स्क्वायर में फ़ौजी परेड का इनेकाद किया, जिसमें हज़ारों फ़ौजियों ने मास्क के बगैर हिस्सा लिया। आइन में तरमीम की तरह फ़ौजी परेड की कामयाबी का इन्हिसार भी वोटों या टैंकों की बजाय आखिरकार इस बात पर होगा कि इन 2 हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस कितने लोगों में फैला है। चार्ल्स माइनेस के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। भारत में चीन मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ है, जब से एशिया के 2 बड़े हरीफों के दरमियान उनकी मुतनाज़ सरहद पर बदतरीन कशीदगी शुरू हुई है। दोनों की अफवाज आमने सामने खड़ी हैं। माहिरीन का कहना है कि इस बहरान से एशिया के 2 सबसे बड़े ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत की हुकूमत बीजिंग पर दबाव डालने के इक़दामात पर गौर कर रही है। जून के वस्त में जब से चीनी फौजियों के साथ एक झड़प में 20 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं,
چینی ساختہ اشیاء کو جلانے اور چینی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے مطالبے پورے بھارت میں زور پکڑ رہے ہیں۔ بیجنگ کے خلاف سخت انتقامی کارروائی کرتے ہوئے نئی دہلی کی حکومت نے 59 موبائل ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے، جن میں انتہائی مقبول ٹک ٹاک بھی شامل ہے۔ اس اقدام سے لاکھوں بھارتی نوجوانوں کی چینی کمپنیوں تک رسائی کم ہو جائے گی۔ بھارتی تاجروں کی ایک بڑی تنظیم نے دکانداروں کو اگلے 18 ماہ کے اندر چینی سامان کا متبادل ڈھونڈنے پر زور دیا ہے۔ اس عرصے میں ہم نے چین سے درآمدات کو کم کر کے $13 ارب تک لانے کا ہدف رکھا ہے۔ کورونا وائرس کے بعد سے پھیلنے والے چین مخالف جذبات نے بھارت اور چین کے درمیان سرحد پر کشیدگی کے بعد اور بھی زور پکڑا ہے، لیکن نئی دہلی کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دوسرے بڑے تجارتی شراکت دار سے الگ ہو جائے۔ والدین کے اپنے بچوں کے خریدے جانے والے کھلونوں سے لے کر نوجوانوں کے ہاتھوں میں موجود سمارٹ فونز تک چینی سامان ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اگر میں صرف بھارتی سامان ہی رکھوں تو مجھے اپنا 40 سے 50% مال ہٹانا پڑے گا۔ انڈیا کی سب سے بڑی صنعتیں جیسے آٹو موبائل، الیکٹرانکس اور دوا سازی بھی چین سے منگوائے گئے خام مال پر انحصار کرتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ متبادل سپلائرز تلاش کرنا ایک مشکل کام ہوگا۔ یہ سب ایک غلط وقت پر ہو رہا ہے کیونکہ وبا کے بعد صنعتیں پہلے ہی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی، اور اگر ان مسائل کے ساتھ ہی وہ سپلائی میں رکاوٹوں کا سامنا شروع کر دیں تو پھر بھارتی صنعت کبھی بھی ان نقصانات پر قابو نہیں پا سکے گی۔ تاہم بھارت چین پر انحصار کم کرنے کا خواہاں ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ریلوے اور سرکاری کمپنیوں کو چینی کمپنیوں کے ساتھ نئے معاہدے نہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ ملکی پیداوار کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ ایک سست عمل ہوگا۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ وسط مدتی بنیادوں پر حالات تبدیل ہو جائیں، لیکن فوری طور پر ایسا ممکن نہیں۔ صارفین بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر متبادل موجود ہو تو وہ چینی اشیاء لینا چھوڑ سکتے ہیں۔ خود کفیل ہو، بہادر بنو۔ اگر کوئی ان جذبات کی حمایت کر رہا ہے کہ چینی چیزوں کا بائیکاٹ کریں تو کر دیں، لیکن کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ اس موقع کو استعمال کریں اور مقابلے کی چیزیں لائیں، پھر شاید ایک دہائی میں ہم اسے چھوڑ سکیں۔ سرحد پر جاری جھڑپوں کے بعد اس طرح کے مظاہروں سے ایشیا کے 2 بڑے ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کا حجم $90 ارب ہے۔ انجنا پیسریچا کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ بنگلہ دیش میں پولیس اہلکاروں میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز سامنے آنے کے بعد دارالحکومت ڈھاکہ کے پولیس اسٹیشنز میں یوگا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بنگلہ دیش میں لگ بھگ 10,000 پولیس اہلکاروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 40 کے قریب اس وبا کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ کورونا شٹ ڈاؤن کے دوران پولیس پر اضافی ذمہ داریوں نے تھکن اور اعصابی تناؤ میں بھی اضافہ کیا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بنگلہ دیشی پولیس نے اپنے اسٹیشنز میں پولیس اہلکاروں کے لیے یوگا سیشنز کا اہتمام کیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے یہ اہلکار اب خود کو زیادہ چست رکھنے کے لیے اپنی ڈیوٹی پر جانے سے پہلے یوگا کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پولیس فورس کی جانب سے سینٹرل پولیس ہسپتال میں تسلی بخش علاج اور یوگا کے اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 کی تو دیگر سروسز کے مقابلے میں پولیس میں کرونا وائرس زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ملازمت عوام کی خدمت کے گرد گھومتی ہے۔ کووڈ-19 نے ہماری پولیس میں اعصابی بے چینی پیدا کی ہے۔ یوگا کا مقصد اسے ختم کرنا ہے۔ یہ ذہنی مشق ہے اور یہ قدم اعصابی دباؤ کم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں facebook.com/urduvoa کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ ہمیں بتائیے کہ آج آپ کو ہمارا یہ شو کیسا لگا۔ نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔